Very good morning, President. Honorable and his respectful team members, respected Durgaram Gandhi, a social worker, Honorable Director Sir, Dr. Ram Niwazi Chaudhary, respected Mr. Karan Singh Sir, who is serving our nation, Colonel Baldev Singh Sir, Madam, a serving Indian Army officer, who is on deputation with the National Cadet Corps since July 2016. He has put a total of 38 years of military service, including 7 years with the NCC. His training and coaching has helped several cadets in their selection in the International Youth Exchange Program to Bhutan, Bangladesh, Vietnam, Singapore, Russia, Nepal, Maldives, etc. He has presented papers in national and international social work congresses and got his paper published in various national and local daily as well as magazines. Colonel Madhav has been nominated as Transformational Leader of NCC for the year 2020 and 21 by ABCD International Base, Nasik, Maharashtra. He is postgraduate in 4 different subjects, including MSc in Military Psychology and MPhil in Human Rights. Also, 5 PG diploma, including PhD in Guidance and Counseling from the Annamalai University. We are blessed to have you sir with us. Well, students, do you know the importance of army in our country? Yes, everyone knows. Our army exists to protect the country from any attack, any internal security problem in the country. For the same, our country prepares young and energetic people through NCC. NCC, which provides opportunity to the youth of the country for their all-round development with sense of duty, commitment, dedication, discipline, and moral values, so that they become able leaders and union citizens. I welcome respected Sir Durgaram Gandhi, a social worker who has arrived. Thank you sir for coming here. Now proceeding for the program. For the same, our institution has added one more class for the students, the NCC. I thank him for providing his gracious presence to join us today in our job. Thank you, sir. I request Mr. Karan Singh sir to present bouquet to Durgaram Gandhi, a social worker. Sir, please. Thank you, sir. I request our Honorable Director Sir to present our well-rated chief guest with a memento as an expression of our gratitude and inexplicable bond we have forged with him. But please, it's a request to Now I request Durgaram Gandhi sir. I request Parvati ma'am to hand over a memorandum to our chief sir. Thank you, Principal ma'am. Now I request Colonel Baldev Singh sir to motivate and guide us with his experience and explain the importance of NCC, how they use to prepare the cadets for the country or to serve country. I request Colonel Baldev Singh ji.
to motivate us with his motivational speech. Respected Director of FX, Ramwali, Ramji, Principal Madam, teaching faculty, my dear cadets and students. I think I will raise my speech in English instead of English purely because some of the students sitting there will not be able to understand English purely. So if I tell things in English, the essence of the thing will go into their mind and they will understand what I say. मुझे आज FX की मुझे आप सभी से इंटरेक्शन करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जोधपुर की इस बहुत फेमस स्कूल के अंदर में जिसके अंदर में वेस्टर्न पार्ट ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट भारतीय स्टेशन में एंड वैसे ऑल ओवर राजस्थान जो बच्चे यहाँ पर हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं या यहाँ पे ग्रेजुएट भी करते हैं। जब एक पोस्टिंग डिक्लेयर हो गई थी जोधपुर के लिए तो सबसे पहले दुर्गाराम जी ने मुझे बताया कि दुर्देव जी आप जोधपुर आ रहे हो एसएससी के अंदर में तो एक काम मेरे कैंसिल कर देना। मैंने क्या काम है तो FX स्कूल के अंदर में आपने एसएससी देनी है। एसएससी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। जोधपुर यहाँ से 38 ईयर्स पहले जोधपुर से बाहर निकल गया था। राजस्थान की मेरी पहली जब पहले बनी तो मुझे भी यहाँ के बारे में कुछ इतना पता नहीं था। तो दुर्गाराम जी ने FX के बारे में डिटेल में बताया क्या क्या करते हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, कितना इनका एजुकेशन के प्रति डेडिकेशन है, कितनी फैकल्टी है और कितने आसपास के क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं हॉस्टल्स में रह करके या आसपास के एरिया के अंदर में इस एरिया के अंदर में जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर देखते हैं। तो आते ही जोधपुर में आते ही मैंने एक मन बना लिया था कि ऐसे एनसीसी देनी है। तो मैं पहले एक बार ऐसे ही अपने ग्रुप एक्सपर्ट के मेरे साथ लिए उनको भी विजिट करवाया, उनको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखवाया और देखने के बाद में उनको भी सेटिस्फेक्शन हो गया, मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो गया कि ये स्कूल रिजर्विंग स्कूल है। इसी के तहत या एनसीसी आई रामपाल जी ने भी एक दो बार पहले मुलाकात के अंदर में बताया कि भाई हमारी स्कूल के अंदर में आप आकर के देख लो और डिजर्विंग स्कूल है और आप उसको जो हमने देखा कि आपकी स्कूल डिजर्विंग है। मैंने उस स्टाफ से इंटरेक्शन किया जब मुझे पता लगा कि स्कूल काफ़ी अच्छी है और इसका एकेडमिक जो इसकी सिस्टम है इट इज़ वेरी गुड। तो हमने लगा कि में लेंगे तो ठीक तरीके से चलेगी और बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट होगा। जब आज एनसीसी यहाँ आ गई है तो मैं आप सभी को इसके लिए कॉम्पनसेशन देता हूँ, खास करके कैडेट्स को उसके पेरेंट्स को। प्यारे बच्चों, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर एक ऐसा यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये सुनकर के ताज्जुब होगा कि एनसीसी अकेली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन सबको इकट्ठा करते हैं तो उससे एनसीसी बड़ी है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तादाद तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 लाख होती है। एनसीसी अकेली की संख्या 15 लाख कैडेट्स हैं पर ईयर। इनमें से 15 लाख में से तकरीबन 1/3 कैडेट एवरी ईयर ट्रेन होकर के सोसाइटी के अंदर में जाते हैं और सोसाइटी के अंदर में अच्छे नागरिक के तौर पे काम करते हैं। ये देखा गया है कि एनसीसी का कैडेट जब एनसीसी की ट्रेनिंग वापस सोसाइटी के अंदर में जाता है तो उसकी वैल्यू एक आम नागरिक से बेटर होती है।
एनसीसी का कैडेट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस एनसीसी के कैडेट को एक नेचुरल लीडर की तरह एक्सेप्ट करता है। एनसीसी का कैडेट के ये सब चीजें होने का कारण ये है कि उन बच्चों के अंदर में एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना आ जाती है। द मोटो ऑफ एनसीसी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम जब बच्चे हमारे पास में ज्वाइन करने के लिए आते हैं, ये वॉलंटियर आते हैं कि कौन बच्चे हम किसी को जबरदस्ती एनसीसी में ज्वाइन नहीं करवाते हैं। जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं उनके माइंड की हम डिफरेंट तरीके से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। उनकी पहले से माइंड की गलत तरीके से यदि फॉर्मेटिंग हो रखी होती है तो उनको अनलर्न करवाते हैं, उनको न्यू लर्न करवाते हैं, नए तरीके से जैसे आप बच्चों की फॉर्मेटिंग करते हैं इसी प्रकार की बच्चों की माइंड की फॉर्मेटिंग हो जाती है। इन बच्चों के अंदर में नेशनल भावना हमेशा आ जाती है और ये बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि हम देश के लिए क्या करें, सोसाइटी के लिए क्या करें, समाज के लिए क्या करें, अपने दायरे से बाहर निकल करके अपने जो थोड़ा सा हुआ होता है उससे बाहर निकल करके जब बाहर आ करके देखो तो मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई पे बैक टू सोसाइटी। अब इनको हमेशा ये बताते हैं कि ask not what your country can do for you, ask yourself what you can do for your country। ये मत पूछो कि समाज आपके लिए क्या करेगा, ये अपने आप से मत पूछो कि देश आपके लिए क्या करेगा, ये अपने आप से ये मत पूछो कि स्कूल आपके लिए क्या करेगी, इससे न पूछो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या करेंगे। आप अपने आप से हमेशा ये पूछो कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। जब आपके अंदर में सेवा की भावना आ जाएगी, जब आप दूसरों के लिए डेडिकेट हो जाओगे, दूसरों के लिए सर्विस का एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना सीख जाओगे, दूसरों को सहयोग करना सीख जाओगे, तो जो आपका हक है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो मैं आपको नया बता रहा हूँ, ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर का नियम है। गॉड है या नहीं है मैं नहीं समझता हूँ, मैंने इसको मैं बिलीव करता हूँ कि भाई मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि भगवान है या नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ कि प्रकृति के जो नियम है उन नियमों को कोई काट नहीं सकता है। आप एक भी जमीन के ऊपर में बोल के देखो, आपको जब पेड़ खड़ा होगा तो उसके बदले में हजारों फूल वापस मिलेंगे। आप जिंदगी में एक अच्छा कार्य करके देखो, आपको उसको रिटर्न के अंदर में हजारों अच्छे काम आपके देखने में होके देखेंगे। एनसीसी के बच्चों को यही सिखाता है। द सेकंड चीज हम एनसीसी के बच्चों को ये सिखाते हैं कि सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द नेशन। आपकी राष्ट्रीयता आपके देश की सेवा के अंदर में निहित है। आप इस देश की सेवा नहीं कर सकते, समाज की सेवा नहीं कर सकते, तो इस देश का नागरिक बनने का आपका कोई हक नहीं है। सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द नेशन। नेहरू जी ने अपने स्वतंत्रता के 15 अगस्त के पहले रेडियो भाषण में मुझे ये कहा था कि देश की सेवा में ही आपकी नागरिकता निहित है। यदि आप देश की सेवा नहीं कर सकते हो तो आप उस देश का नागरिक बनने का कोई हक नहीं है। इन बच्चों को यही चीजें सिखाते हैं और आप जैसे बच्चे वॉलंटियर होकर के नेक्स्ट ईयर में आना चाहते हैं तो यही चीजें आपको सिखाई जाएगी। थर्ड चीज हम सिखाते हैं बच्चों को कि योर वैल्यू इज इन योर ओन हैंड्स। आपकी वैल्यू आपके खुद के हाथ में है। आप अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो या आप अपनी वैल्यू नहीं करवाना चाहते हो, वो आपके खुद के हाथ में है। और उसके लिए हम उनके दिमाग के अंदर एक सेंटेंस हमेशा ड्रिल करते हैं, एक उनको डीपली उनके माइंड के अंदर डालते हैं कि यू आर वैल्यूड ओनली व्हेन यू आर वैल्यूएबल टू समवन। और ये सभी बच्चों को अपने दिमाग में बिठा देना चाहिए अच्छी तरह से और अपनी कॉपी के पहली लाइन के अंदर में लिख देना चाहिए, अपनी स्टडी टेबल के सामने लिख देना चाहिए कि यू आर वैल्यूड ओनली व्हेन यू आर वैल्यूएबल टू समवन। आप भी किसी के काम आ सकते हो तभी आपकी वैल्यू होगी, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
ट्रेनिंग के अंदर में बच्चे एक तरह से बहुत राउंडेड बनने लगे, एक ऑलराउंड पर्सनल बन करके हमारे हम होते हैं। जब इनको हम गेस्ट लेक्चर देते हैं या ट्रेनिंग के अंदर में हमारे पास मिलिट्री के ऑफिसर आते हैं, एयरफोर्स के नेवी के ऑफिसर आते हैं, सिविल के ऑफिसर आते हैं, तो उनको एक तरह से लाइफ के पूरे पर्सपेक्टिव इनके सामने एक ओपन हो जाते हैं कि हमको लाइफ की डायरेक्शन के अंदर में आगे बढ़ाना है। और यही कारण है कि एनसीसी का बच्चा कभी फेल नहीं होता। एनसीसी का बच्चा यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा तो सिविल के अंदर में अपना करेगा, यदि वो सिविल के अंदर में जॉब नहीं कर पाएगा जब कोई भी ये सबके लिए सभी पता नहीं होता है, एनसीसी के अंदर सिखाते हैं ये तो फर्स्ट एड कोर्स कहते हैं। तो जब कोई भी बच्चा इस प्रकार से जमीन पे गिर जाता है तो कभी इसको वापस करना बच्चों ये सब आपके लिए याद नहीं। उसको जमीन पे बिल्कुल एकदम फ्लैट लेटा दो और उसके पाँव थोड़े से पकड़ करके पैर नीचे कर दो। क्या करना है, उस बच्चे को जमीन के ऊपर में लेटाना है और उसके पाँव को पकड़ करके पैर नीचे कर देना है। कारण जब बच्चा बहुत देर के लिए खड़ा हो जाता है और वो एकदम डिसिप्लिन के साथ खड़ा होता है तो हार्ट से ब्रेन का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो ब्रेन के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम बढ़ जाती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नीचे वाले होते हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर की मात्रा कम होती है। जब वो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो बच्चा उसकी गिर जाता है और कुछ नहीं इसके अंदर में। तो आप बच्चे को आपने जमीन पे लेटना है, उसके पाँव को पैर नीचे कर देना है। आपको 30 सेकंड आपको बचाव कैंप के अंदर होना रहता है। ट्रेनिंग के अंदर सुबह 4 बजे खड़े करते हैं और आपको 11 बजे कैसे ट्रेनिंग करते हैं और हमारे ट्रेनिंग के अंदर में खड़े ब्रेक और कभी भी गिरते हैं तो कोई ट्रेनिंग बंद नहीं करते हैं। हमारी मिलिट्री की जिम्मेदारी है जब तक 10% कैपेबिलिटी नहीं हो जाती है, 1000 की मदद होती है, 1000 में 10% का मतलब होता है 100 लोग। 100 लोग जब तक मर नहीं जाते हैं हम मिलिट्री ट्रेनिंग बंद नहीं करते, मर भी जाएंगे। ढाई रुपये के पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, मिलिट्री ट्रेनिंग बंद नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाए तो समस्याओं को झूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो झूलने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो इनका इनिशिएटिव देख करके, इनका जवाब इनका एटीट्यूड देख करके, इनकी काम करने की तमन्ना को देख करके वो ऑर्गेनाइजेशन इनको गले से लगा देता है। वो इनको कभी छोड़ता नहीं है कि यस ये हमारा एक वैल्यूएबल मैसेज है, ये बच्चा हमारे पास रहेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बदला होगा। तो एनसीसी के बच्चों को हमने कभी फेल होते नहीं देगा, एनसीसी के बच्चों को हमने कभी अनसक्सेसफुल होते नहीं देगा, एनसीसी के बच्चों को हमने कभी बेरोजगार होते नहीं देगा। एनसीसी का बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए सक्षम हो जाता है जब वो अपनी वैल्यू अपने आप पहचान लेता है। आप लोग बच्चे बैठे हुए मेरे सामने, इन सभी बच्चों को इन बच्चों से सीखना चाहिए कि ये किस प्रकार स्ट्रॉन्गली अपने पाँव के ऊपर खड़े होते हैं, किस प्रकार से डिसिप्लिन वे के अंदर में अपने सामने अपना डिसिप्लिन को कायम करते हैं, किस प्रकार से ड्रेस के अंदर में यूनिफॉर्म की होती है, किस प्रकार इसके बाल कटे हुए होते हैं, किस प्रकार से इसके नाखून कटे हुए होते हैं, क्या इनका ड्रेसिंग सेंस है, ये सब देखने की बहुत जरूरत है। जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है, आपका व्यवहार अच्छा हो जाता है, कंडक्ट अच्छा हो जाता है, आपका डिटरमिनेशन अच्छा होता है, आपकी मेंटली थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आपको अच्छे से होने की कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो एनसीसी किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर में होती है तो वो जो बच्चे होते हैं 25-50 वो बाकी बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं और पूरी स्कूल के बच्चे भी वो डिसिप्लिन की तरफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं या वो को सीख करके किसी वैल्यू को रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए हर एक चीज चाहता है कि आए तो जैसे जगह जैसे हमारी बात है कि देख सकते हैं कि बहुत अच्छे सीट भी होती है, फिर भी हमारे को दान भी करता है कि बहुत अच्छे हैं, काफी है तो उनके अंदर हम चीज़ करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज है तो आपके लिए आती है, जो मैं बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने के अंदर में सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर में बच्चों को ये लाइफ के अंदर में आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया का यूज आपके खुद के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, न कि सोशल मीडिया के
आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि कौन से ब्रांड को कितने टाइम के लिए हेल्थ बेनिफिट के लिए एजुकेशनल हेल्थ के लिए देना चाहिए। यदि उसी के अंदर में आप चैट कर रहे हो, उसी के अंदर में आप अननेसेसरी मीडिया पोस्ट को आप फैला रहे हो और आप एज ए स्टूडेंट आपको समय आपके एजुकेशन के लिए लगाना चाहिए, आप लोगों मीडिया में लगा देते हो, आप बहुत बड़ा एक ग्रुप बना देते हो, फ्रेंड्स बना देते हो, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप उनके पास आ जाए। आपके पेरेंट्स भी आपको ज़्यादा मॉनिटर नहीं कर पाते, आप ज़्यादा रहता है, आपके टीचर्स भी आपको कोई गाइड नहीं देते हैं, तो आपको खुद को अपनी समझ की जान जैसे कि हम हमेशा होते हैं कैंप के अंदर बच्चों को सबसे पहले क्या करें तो चीज का बुलंद करना कि हर तस्वीर से पहले पूरा तस्वीर क्वालिटी डालने के लिए आपके पास है दुनिया भर के रिसोर्सेज है, आपकी स्कूल है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से अपने अंदर इतनी क्वालिटी डाल दो कि आप जहाँ भी जाओ लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, लोग आपको ये नहीं कह पाएंगे ये आदमी कहाँ से आ गया। हर आदमी चाहेगी कि आदमी मेरे साथ रहेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि ये बच्चा मेरे यहाँ पे रहना चाहिए। एक आदमी की 10 जगह से कॉल लेटर आना चाहिए, एक आदमी की 10 जगह से इंटरव्यू आना चाहिए कि आप हमारे पास आ जाओ, आप नौकरी लेंगे। और वो सब हो पाएगा जब आप अपनी भलाई अपने आप करना सीखोगे, आप अपने पाँव के ऊपर ठीक से खड़े होने सीखोगे, आप अपने भले और बुरे के अंतर समझोगे, आप भावनाओं में रह करके मीडिया का अननेसेसरी यूज नहीं करोगे, आप गूगल उचित प्रकार से यूज करोगे जिस पर्पस के लिए गूगल की फाउंडर ने गूगल को बनाया। अब आप आज के बच्चे होते हैं पीयर प्रेशर बहुत होता है, पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि अपने दोस्तों का प्रेशर बहुत होता है। ये मैं ऐसे कि बच्चों सुना दो, सुना दो, यार देख सुना दो, अरे बिठा दो, सुना दो। जिस बच्चे को चक्कर आ रहा है नीचे बैठी सोशल मीडिया का यूज आप अपने उसके बेनिफिट नहीं करें और अपनी संगत अच्छी रखें। अब पीयर प्रेशर बहुत होता है बच्चों के अंदर में, बच्चे काफी टाइम ये देखा गया है कि वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानेंगे, टीचर्स का कहना नहीं मानेंगे, बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानेंगे, जो अपना जो दोस्त जैसा कर रहा है दोस्त को कभी वो इग्नोर नहीं करते हैं। इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। तो वो प्रेशर में आकर के अपने दोस्तों के साथ में जरूर जाता है, दोस्तों की बातों को 100% मानता है। वो सोचता है कि मेरे दोस्त के सामने नहीं करता, दोस्त मेरे को दोस्त से बात नहीं करेगा, दोस्त बैकवर्ड करेगा, आइसोलेट हो जाएगा। बस अपने खुद के अंदर में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, दूसरे की अप्रूवल की चिंता मत करो, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है उसकी बिल्कुल परवाह मत करो, आप अपने खुद के बारे में परवाह करो कि आप क्या हो। आपकी खुशी किसी दूसरे के हाथ में रिपोर्ट कंट्रोल मत दो, आपका रिपोर्ट कंट्रोल आपको खुद के हाथ में होना चाहिए। जो कोई भी गलत नहीं भी कराऊंगा तो मैं अपने साथ तस्वीर कर पाऊंगा, मैं हूँ वो है। और अपने आप को कैसे रास्तों पे चलूंगा कि एक दिन आपको रोज जो आप वीडियो कर रहे हैं वो गूगल कर दिया, आपको दूसरे की इतना बड़ा आगे पहुंच गया है वो कहाँ है उसको गूगल करके मिल जाता है। वो तब करोगे जब आप विद्यार्थी जीवन के अंदर में अपना समय अपनी स्टडीज के लिए और अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए लगाओगे। संस्कृत में जो है सुखाती पूर्व विद्या विद्यार्थी सुखाती जगह विद्या विद्यार्थी विद्या यदि अर्जित करना चाहते हो तो सुख को ध्यान करना पड़ेगा और सुख अपने पास में रखना चाहते हो, किसी के अंदर ऐसा आपकी लाइफ देना चाहते हो तो विद्या आपके पास में नहीं आएगी। विद्या नहीं आने का आपके पास धन नहीं आएगा, धन नहीं आने का आपके पास लोग नहीं होंगे, आप गरीब रहोगे, आप गरीब रहेंगे तो आपका लोग नहीं कर में पहुंच जाए जिंदगी में आपके करने और इस सबके कारण क्या है क्योंकि अभी आप एक बैड एक्सपीरियंस में आकर करते हैं, आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। आपका जो समय है, आपका डेडिकेशन, आपका जो समय आप स्टडी में लगना चाहिए, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगना चाहिए, उसके लिए नहीं लगा रहे। या आप
बैड कंपनी में आपने नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे लिखे हैं कि पूरी संगत में पढ़ने के बाद की को बात करो। सोसाइटी के अंदर बैड इन्फ्लुएंस बहुत है। कोई आज गांजा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, स्मैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, सिगरेट चल रही है, पता नहीं किस प्रकार के बच्चे आगे हैं जो बच्चों को बिल्कुल एकदम गलत राह पे ले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कौन से गेम खेलते हैं, कुछ करने लगते हैं। मैं कहता हूँ बच्चा गलत आजकल के समय में एंटर होना बड़ा आसान था, पर उसके बहुत मुश्किल था। एक अंग्रेजी में कहावत है कि बैड हैबिट्स आर लाइक द कोल्ड बैड इन विंटर। इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू इट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। मतलब बुरी आदतें जो सर्दी का गर्म होता है, सर्दी के अंदर में गर्म कपड़े के अंदर में बहुत आसान होता है। तुलसी का एक बैड हैबिट्स का लाइक कोल्ड बैड आराम से थोड़ा दूसरा बैड हैबिट्स का लाइक कोल्ड बैड इन विंटर। इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू इट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। इसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको कभी भी किसी प्रकार की गलत संगत के बात में नहीं बैठना है, गलत संगत नहीं करनी है, गलत लोगों को बात नहीं करना है, उनसे राम करके दूर रहना है। यदि वो कोई गलत संगत वाला होता है, आपको पता नहीं लग रहा है, 10 दिन से पता लग जाता है, उसकी कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम कर दो और उसे कट कर दो। एकदम आपको हैदराबाद की सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत बच्चा है तो आपको उसका नहीं कर सकता है। बस वो धीरे धीरे उसको रेस्पॉन्स कम कर दो, उसके साथ कम्युनिकेशन कम कर दो, उसके पास उठना बैठना कम कर दो, उसके यहाँ से आना जाना कम कर दो, उसके घर जाना कम कर दो, अपने आप को दूर हो जाएगा और गलत लोगों से आपकी संगति टूट जाएगी। तो ये जो गलत संगति होती है वो गलत रास्ते में बच्चों को ले जाती है, अच्छी संगति होती है वो अच्छे रास्ते से ले जाती है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी विवेचना की। वो कहते हैं कि बारिश का एक बूंद आपको यदि ऊपर से अपने हथेली के अंदर में ले लो, मोती की तरह बिल्कुल गंगा जल की तरह और होता है, आप उसको आता है। और वही पानी की बूंद जो आकाश से गिरी है वो गटर में गिर जाती है, तो उसके अंदर में आप पाँव लगाना पसंद करते हैं। वही पानी की बूंद यदि समुद्र के अंदर सीधी होती है, उसकी मुंह में गिर जाती है, तो पानी की बूंद जो है वो मोती में कन्वर्ट हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि कमल के फूल के ऊपर गिर जाती है, क्रिस्टल की तरह चमकती है, सुंदर दिखती है। वही पानी की बूंद यदि कलमी नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल के अंदर से गिर जाती है, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। पानी की बूंद बात सिर्फ संगत की है कि वो उसकी जगह पे किसी संगत में बन गया। आज के बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस संगत में बन गया। आप तो यहाँ से बैठे हो, तो खड़े हो, अपने माँ बाप की आप इस स्कूल के भी बच्चे हो, आप इस सोसाइटी के भी बच्चे हो, कॉलेज की पूरे भारत माता के बच्चे हो। आप इस महान देश को बच्चे हो, तो आपको इतना नहीं बात करना है कि आपको हम बिल्कुल नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप भारत माता के बच्चे हो और भारत माता का भविष्य आपके कर्मों के ऊपर में डिपेंड करता है। 1964 के अंदर में कोठारी साहब एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ी जरूरत की नई नीति में आपको बता जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत का 1964 के अंदर कहा था उन्होंने उसकी कंस्टिट्यूशन बैंक के अंदर एजुकेशन कमीशन ने उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य का निर्माण आज स्कूल के कॉर्पोरेट और महाविद्यालयों के बहुत हो रहा है। 64 ने कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण स्कूल के कॉर्पोरेट और महाविद्यालय के बहुत में हो रहा है। आज की बात वही है, कल का भारत आपके तरफ में डिपेंड करेगा। कहावत भी है कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं समाज, किस प्रकार के बच्चे किस संस्था के अंदर पढ़ते जाते हैं, सोसाइटी कितनी एजुकेट होती है, वो अपने और लोगों को क्या तवज्जो देती है, अपनी करने की करते 100% उद्देश्यों को एजुकेट करती है, उसको मुझे जीवन और उसकी जो उसका डिपेंड करता है स्टैंडर्ड कितनी है। मैंने अपना एनालिसिस निकाला है कि जो विकासशील देश है या अविकसित देश है या जो विकसित देश है, इन तीनों के अंदर जो फर्क इतना ही है कि जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर
जो एजुकेशन के ऊपर में अभी ठीक से खर्चा कर रहे हैं वो विकास के देश है, और जो एजुकेशन की तरफ में उनका बजट बिल्कुल कम है वो अविकसित देश है। दूसरा पैरामीटर ये है कि जिन कंट्रीज ने एजुकेशन अपनी और को कंप्लीट रूप से दे दिया, जिसका मतलब वो करते हैं 100% उन्होंने और बन गया, स्किल्ड बन गया, तो कंट्री विकसित हो गई। जिस कंट्री के अंदर अभी और को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है वो विकासशील देश है, और अभी भी जिस कंट्री की और में पढ़ाई की तरफ में उसको हमें कम नहीं करती है वो अविकसित देश है। तो हमको ये देखना है कि हम अपने देश को विकसित देश बनाने के लिए किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो है के माध्यम से अपने बच्चों को रेगुलर बताते रहते हैं। आज मैं आपके सामने आया हूँ तो मैं सोचा कि आपको भी आपके सामने जो हमारे एनसी का रिसर्च कर रहे हैं और मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे इंट्रोड्यूस कर दी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे, और हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन है उसी के मुताबिक आगे बढ़ेगी, उससे कि बच्चों को का फायदा हो। इसी के साथ बहुत जगह आपने मुझे यहाँ पे इतना रिस्पेक्ट दिया और दिया, दिया और सम्मान दिया, आपका बहुत ही आभारी हूँ, प्रेरित रहूँगा, और मैं बच सके आप सभी के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सुन अब मैं बात में जाता हूँ कि बच्चों को नाम देके जाता हूँ। हर व्यक्ति इस दुनिया में जब आता है तो आवश्यक बन जाता है। जब हम पैदा होते हैं हमारी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। किसी को कुछ नहीं होता है कि वो आदमी जैसे डबल गुरु का दिया है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया, बच्चों से अपने पैदा होती तो हमारे बड़े हर एक व्यक्ति शख्सियत बनता है। क्या बनता है? शख्सियत बनता है। हर स्कूल के बच्चे का आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो एक शख्सियत बन करके वापस भगवान के घर जाए। 17 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। वो अपने मेहनत करे, अपने स्किल डाले, अपने गुण डाले, वो इतना अपने आप में त्याग करे, दूसरों के लिए काम करे, दूसरों की लड़ाई और दूसरों को बढ़ाए, इस दुनिया का नाम करे, तो जाए एक शख्सियत के रूप में उसका नाम आए। तो हम तैयार हैं सभी शख्सियत बनने के लिए? आवाज नहीं आई? हम सभी शख्सियत बनने के लिए तैयार हो? पक्का? मैं आपको बोलूंगा कि शख्स बन के आए हैं, आपने पहले साथ में बोलना है कि शख्स बन के आए हैं, ठीक है? जोर से बोलना आपने भी साथ में बोलना चाहिए। शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। आप आपकी मुट्ठी को देख कर जबरदस्त जबरदस्त आवाज के साथ में लाख टाइम में जाएंगे। शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। थैंक यू ऑल दैट। One moment,
अतिथि CEO समाज सेवी टीकाराम जी तागीजा, टीचर्स और बच्चों, और प्रथम दिवस है हमारे कैडेट्स का। आपके विद्यालय में इस तरह की सिपाही परेड है, ये 100% क्रेडिट जाता है कर्नल साहब को, और इस कार्य की शुरुआत कराने किसी कार्यक्रम में लोग बैठे थे, समाज के कार्यक्रम में दुर्गा जी ने कहा कि अपने स्कूल में सारी चीजें अच्छी नजर आ रही है, डिसिप्लिन है, पढ़ाई है, संस्था में उनकी मेरिट्स है, आप एनसीसी क्यों नहीं जाते? पहले बच्चों इसके प्रति मेरा थोड़ा ये हुआ करता था कि मैं पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दिलवाता हूँ, एनसीसी में जाएंगे, बच्चे किसी कैंप में जाएंगे, टाइम खराब होगा, घर वाले कहीं वाले भेजेंगे नहीं, बच्चे पता नहीं बिगड़ जाएंगे। लेकिन समय के साथ मुझे बताया गया, देखा मैंने कि एनसीसी का बच्चा बिगड़ता नहीं, सुधरता है और लोगों के लिए भी एक रोल मॉडल बन जाता है। इस सोच में इस कार्य में एक फाइल बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। फाइल बना करके कर्नल साहब के कार्यक्रमों से यह कार्य होना था। बहुत धन्यवाद साहब को कि आपके फाइलिंग अथॉरिटी एनसीसी की मान्यता को लेटर आपको आपने आज हमें सौंपा है। बहुत धन्यवाद संस्था की तरफ से। कर्नल साहब के बारे में बता दो बच्चों, आप लोग कैडेट्स के रूप में जानना चाहिए आपको। बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन है, बहुत जो होते हैं एजुकेशन को टॉप लेवल पे कई सब्जेक्ट्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, डॉक्टरेट किया है, हाईली लर्नेड पर्सन है और हाईली सोशल वर्कर है। समाज में आई हुई बुराइयों को दूर करने के लिए प्रथम व्यक्ति के रूप में आगे खड़े होने के लिए प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, चंद दिनों पहले अगर आपने अखबार पढ़ा हो, अखबार में बड़ा संदेश पढ़ा हो, तो बार आया है कि कर्नल बलदेव सिंह जी ने शुरुआत की सामाजिक बुराई को दूर करने की। आपके फादर एक्सपायर हो गए थे कुछ महीनों पहले। समाज में इधर हमारे ये बुराई है कि मरने के बाद खाना खाते हैं, मृत्यु भोज करते हैं। आपने निर्णय लिया कि मृत्यु भोज ना करके समाज में क्या किया जा सकता अच्छा। आपने बच्चों लाखों रुपए, अब एग्जैक्टली आंकड़ा तो साहब जानते हैं, 25-30 लाख के आसपास, 36 लाख रुपए समाज के मंदिर में, पुस्तकालय में, गौशाला में, जहाँ धर्म का कर्म का काम हो सकता है, जहाँ समाज आगे बढ़ सकता है, सुधार हो सकता है, बजाय मृत्यु भोज करने के। साथ में क्या बहुत बधाई की बात है ऐसे कार्यों के लिए। केवल किसी एक समाज में नहीं दिया ये पैसा, सर्व समाज में दिया, सर्व धर्मों में दिया। प्यारे बच्चों, आपको ये स्लोगन जो आपके नेशन फ्लैग पे है, एकता, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष कर्तव्य निष्ठ की तरह धर्मनिरपेक्षता का भी आपने सीओ साहब ने फर्ज निभाया है। आप हर समाज में अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है, कैसे करके समाज आगे बढ़े और समाज सफाई का कहीं न कहीं गाँव में ऐसी लोग कहते हैं लोगों को जीवन अपने घर में जीवन में जोर आता है। उन्होंने कहा जीवानी की बात छोड़िए, आगे बढ़ने की बात। बहुत बधाई ऐसे कार्यों के लिए, बार-बार बधाई। प्यारे बच्चों, आपके फ्लैग पे बहुत सुंदर लिखा एकता, अनुशासन, यूनिटी, डिसिप्लिन। ये सबसे एक बड़ा गुण मंत्र है आपके एनसीसी के लिए। आपने जो 3 कलर नजर आ रहे हैं, तीनों कलर का अपना एक महत्व है। एक थल सेना का, एक जल सेना का, एक वायु सेना, रेड, आपका ब्लू और आसमानी, लाइट आसमानी। तीनों कलर का अपना एक महत्व है। तीनों सेनाओं को प्रतिनिधित्व
नेटवर्क के रूप में आप एक ले गई, आप इसमें देख रहे हैं कि एक चक्कर बना हुआ है, इसमें 17 गुलाब के फूल है, आप देख पाएंगे इसमें काउंट करेंगे तो 17 दिखेंगे, 17 निदेशालय में एक करता है ये चक्कर। ये आपका बहुत ही अपने आप में ये सारे डायरेक्टरेट 24 को आपको ये समा की बैठा है, कई इकाइयां हैं इसकी एनसीसी की, लेकिन विधायक निदेशालय के रूप में इस तरह से आपको हर चीज को बारीकी से समझना सीखना है कि एनसीसी में क्यों नहीं है। भविष्य में आपको इसमें कई सर्विसेज में स्पेशली डिफेंस में डीजीपी से मिलता है आपके सर्टिफिकेट का। डीजी में से अपनी जगह नौकरी जॉब्स में साहब का सीओ साहब का बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश आपके लिए कि आप अपने जीवन में इस तरह के बन जाने वाले हो, नौकरियों की नौकरी देने वाले बनने वाले हो आप कई जगह आपका अनुशासन आपके काम आएगा, आपको नेतृत्व का आपको आधार देगा वो आपके काम आएगा। एनसीसी एक सामान्य शब्द नहीं है, एनसीसी आपको बहुत कुछ सिखाती है। एनसीसी गिर के उठने का तरीका सिखाती है, हमारी बच्ची गिरी फिर उठी, फिर उठी, लेकिन ये संघर्ष करना सिखाता है, ये एनसीसी ही सिखाता है। आप बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे से आप अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ आप अपने आप को साबित करें। ये टाइम वेस्ट नहीं है, सीखने का ट्राई है आप लोगों के लिए। कैडेट्स सर आज एक्चुअली आपके पास बहुत बड़ी भीड़ नजर आती है बैठा के स्टूडेंट्स की, लेकिन 10th के एग्जाम हो गए, 10th के बोर्ड के एग्जाम हो गए, हमारे 8th के बोर्ड के एग्जाम हो गए, हमारे 5th के एग्जाम आज शुरू हो गए, वो बच्चे चले गए। हमारे 9th 11th के होम एग्जामिनेशन होने वाले प्रिपरेशन एग्जाम की 10th क्लासेस हमारी छोटे बच्चे जो शायद आपकी वीडियो में बातों को समझ पाए वो नहीं समझ पाए, लेकिन ये समझ पाए कि एक देश में बहुत अच्छी पहुंच के बच्चों सिविल लाइफ में जैसे एसपी होता है, कर्नल की लाइफ ज्यादा सुंदर और रैंक से ज्यादा अच्छी। कर्नल और समूह की लाइफ जीने वाला पोस्ट अपने आप में डिसिप्लिन के साथ सारी बातें आपने देखा। जैसे डॉक्टर लोग बीमार था, एक छोटा सा मोमेंट और देना चाह रहे थे, लेकिन ये बहुत ही वसूल में होता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये आप देना चाह रहे होंगे, लेकिन मेरे वसूल में बाहर की बात होगी। ये एक ऑनेस्टी होती है लोगों में, जबरदस्त ऑनेस्टी, देशभक्ति के प्रति जज्बा, कई चीजें जो सीखने पर इनके बॉडी लैंग्वेज से देखकर सीखने वाला सीख जाता है मुझे क्या सीखना। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया किया आपने, आपके कार्यक्रमों से आपके शुरू की फाइल बना रखी है सर, उसमें भी कृपा दृष्टि यदि कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके कार्यकाल को मैं सर निवेदन करूँगा वो एक्टिविटी का भी बहुत कर पाएंगे, बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आपको बहुत चाहता हूँ कभी आप एनसीसी की तरफ देखकर तो मैं नहीं करेंगे, अब जो तरीके से हमारे कैडेट्स को याद करेंगे आपको आगे भी मिलेंगे। मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं, थैंक यू। Along with the management, will inspect our NCC team now. Please, you are ready to inspect our team. We are thankful to Colonel Anand for explaining the importance of NCC and what else NCC serves to nation, how they prepare and wait for the nation.